the past few weeks, we have been looking at King David. पिछले कुछ हफ्तों से हम राजा दाऊद के विषय में देख रहे हैं वचन से. Many of us know him as someone who is called a man after God's own heart. और हम में से बहुत लोग इस बात से परिचित हैं कि दाऊद को बोला गया है परमेश्वर के मन के अनुसार पुरुष. And why is that is the reason that we have been exploring in the past few weeks. और ऐसा क्यों बोला गया है दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुसार, ये हम पिछले कुछ हफ्तों से वचन से सीख रहे हैं. A lot of people came in King David's life to make him what he was. बहुत से लोग दाऊद राजा के जीवन में आए उसको वो बनाने के लिए जो वो थे. Many were supportive of him and his calling and anointing in his life. और बहुत से लोग उनके अभिषेक के अनुसार उनके साथ संबंध में रहे. But many people also disliked King David and really opposed him. लेकिन बहुत से लोग जो उसको पसंद नहीं करते थे और उसके विरोध में रहते थे. Many did not like that God would choose an ordinary person, a shepherd from a village, and make him the king of Israel. और बहुत से लोग इस बात से असमंजस में थे कि परमेश्वर एक ऐसे साधारण व्यक्ति को जो एक चरवाहा था उसको उठाकर एक राजा बना सकते हैं. And one such man, और उनमें से एक व्यक्ति who really disliked King David, जो उनको राजा दाऊद को नापसंद करते थे, was a man called Shimei. वो एक पुरुष थे जिनका नाम था शिमी. And this man had done things to King David that only invited death in those days. और इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे काम किए जो उन दिनों में केवल मृत्यु को आकर्षित करते थे. David's dealing with a person like Shimei is one of the reasons that God loved King David and how he was called or why he was called a man after God's own heart. और किस प्रकार से राजा दाऊद ने शिमी के साथ व्यवहार किया, ये एक और ऐसा उदाहरण है इस बात को सत्यता देने के लिए कि क्यों राजा दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति थे. So this story of Shimei and how King David dealt with him, और ये जो कहानी है शिमी के विषय में और किस प्रकार से राजा दाऊद उनके साथ व्यवहार करते हैं, is found in second book of Samuel 19:16 to 23. All right, so we thank God for the word, and may the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष मिले. The first thing that comes to our mind is, who is this guy Shimei who had the courage or the boldness or the audacity rather to curse King David? तो पहला सवाल इस हिस्से को पढ़ने के बाद हमारे जो जहन में आता है वो शिमी है कौन जिसने इतनी जुर्रत करी कि राजा दाऊद को बुरा भला कहे. Probably you've never heard of him. हो सकता है आपने इसके बारे में ना सुना हो. And there is a good thing about that if you don't want to hear people like Shimei. और एक अच्छा कारण है यदि आप इसके बारे में जानना नहीं चाहते. But as you read this story, पर जैसे आप इस कहानी को पढ़ेंगे जो भी पढ़ी गई you आपके will सामने, discover that there are Shimeis in your life, in my life. तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि मेरे और आपके जीवन में भी कई शिमी हो सकते हैं. In fact, I would go on to say that you need people like Shimei in your life. बल्कि मैं ये कहना समझता हूँ कि ये कहना जरूरी है कि हमें चाहिए कि हमारे जीवन में शिमी जैसे व्यक्ति हों. So who was this Shimei? ये शिमी कौन है? Shimei obviously was someone from the house of King Saul. और शिमी जो है राजा शाऊल के परिवार के घराने का था. And he was a bitter man. और वो एक कड़वाहट से भरा हुआ Because he था. was from the King Shaul's family. और क्योंकि वो राजा शाऊल के परिवार से था. If you look at the first book of Samuel chapter 16, we read from second book, but if you read later on from the first book of Samuel chapter 16,
अभी हमने दूसरे सैमुएल से पढ़ा, लेकिन यदि आप पहला सैमुएल में और उसके 16 अध्याय में जाएंगे तो आप जानेंगे, You will understand that this man from the family of Shaul, तो आप इस बात को समझेंगे कि ये जो व्यक्ति शिमी है शाऊल के परिवार का, he could not stomach the fact that God had rejected Saul and instead in his place God had appointed and anointed David as the king of Israel. वो इस बात को अपने जहन में पचा नहीं पा रहा था कि कैसे शाऊल को हटाकर परमेश्वर ने राजा दाऊद को गद्दी पर बैठाया है राजा करके। Perhaps he was one of the beneficiaries of his family man Shaul being on the throne. हो सकता वो शाऊल के परिवार पे जब शाऊल राजा था तो उसका बेनिफिशियरी रहा हो, And perhaps he could not see why God would change the kingship in his people Israel. और वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर एक राजा को कैसे बदल सकता है अपने लोगों के लिए जो इस्राएल में है। So he became bitter against God's anointed and chosen man David. और इस कारण वो बड़ी करवाहट से भर गया इस परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति दाऊद के प्रति। He was a man who never got over his past. और वो अपने अतीत से जूझ नहीं पाया ये देखकर। That led him to become a bitter man. इसके कारण वो कड़वाहट से भरा हुआ था। See, the bitterness in our hearts doesn't come just suddenly on one fine morning. हमारे जीवन में यदि हम देखें तो जो कड़वाहट हमारे जीवन में वो अचानक से एक दिन यूं ही नहीं आ जाती। Bitterness coupled with jealousy is developed over time. और जो कड़वाहट है वो एक जलन के कारण जो काफी समय से जीवन में हो उससे बढ़ती जाती है। When we fail to see what God is doing, जब हम इस बात से हार जाते हैं कि परमेश्वर कर क्या रहे हैं, when we fail to see the will of God, जब हम हार जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को देखें, when we fail to see how God is working around us, और जब हम इस बात को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर किस तरह से हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं, when we fail to accept the will of God in our lives, और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को इच्छा को ग्रहण करने से नहीं मानते, and when we see there is some very clear signs that God is working in someone else's life, और जब हम इस बात को देखने लगते हैं कि परमेश्वर दूसरे के जीवन में कार्य कर रहे हैं, when God is blessing somebody else, जब परमेश्वर दूसरे को किसी और को आशीषित कर रहे when हैं, God is lifting somebody else, और जब परमेश्वर किसी और को उठा रहे हैं, God is blessing somebody and anointing somebody and appointing them for His purposes, यदि परमेश्वर किसी और को अभिषेक कर रहे हैं, उसको चुन रहे हैं अपनी योजनाओं के लिए, sometimes we become like Shimei. तो ऐसे कभी-कभी हम इस प्रकार से शिमी की तरह हो जाते हैं, Because we harbor jealousy and it turns into bitterness in our lives. क्योंकि हम अपने जीवन में जलन को इकट्ठा कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो कड़वाहट को जन्म देती है, And then it comes out of our mouth. और फिर वो हमारे मुख से निकलती है। As we see that not only Shimei was bitter, but he did something against the Lord's anointed King David. और जैसा कि अभी हमने वचन में से पढ़ा, हम देखेंगे कि कैसे ये शिमी जो है कड़वाहट से भर गया और उसने क्या किया परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद के प्रति। So what did Shimei do? शिमी ने क्या किया? We see in the second book of Samuel, chapter 16. ये हम देखते हैं दूसरा सामुएल के 16 अध्याय में। And I want you to focus on this part of this story. मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी के इस हिस्से में अपना ध्यान केंद्रित करें। How Shimei, the man from the household of King Saul, कि कैसे शिमी जो शाऊल के घराने का है, he cursed David. वो कैसे कर्स करता है दाऊद को, And he threw stones at him. और उसके ऊपर पथराव करता है। And he verbalized what bitterness and what jealousy he had going on for years in his life.
और उसके जीवन में जो कई सालों से कड़वाहट थी उनको वो अपने शब्दों के द्वारा जाहिर करता है. And this cursing of Shimei at King David और ये जो शाप देना शिमी के द्वारा दाऊद राजा के ऊपर था, could not have come at a worse time in David's life. और ये जो दाऊद के ऊपर शाप शिमी ने दिया, ये सबसे ज्यादा दुखी समय था दाऊद राजा के लिए, सबसे कठिन समय था. Why? क्यों? Because King David was anointed and appointed as the king of Israel. क्योंकि राजा दाऊद को चुना गया था, अभिषेक किया गया था इस्राएल के राजा होने के लिए. But then his own son Absalom got together with some of David's enemies. लेकिन दाऊद का अपना बेटा अबशालोम उसके दुश्मनों के साथ मिल गया. And so he revolted against King David. और फिर वो उनके साथ बदला लेने लगा. And so David was fleeing now from his own son Absalom. और अब राजा दाऊद जो है वो अपने ही बेटे अबशालोम से भाग रहा था. Shimei, on the other hand, is thrilled at the turn of events when he sees that David is down and out and he's fleeing. और ये देखकर शिमी जो है बड़ा मन में विचार में खुश हो रहा था, ये देखकर कि दाऊद राजा बड़े कठिन समय से अपने ही बेटे से भाग रहा है. This appeared to Shimei a moment that he should be happy and dancing because now he was gloating over the downfall of King David. और ऐसे समय में राजा दाऊद की इस कठिन समय को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर शिमी जो था बहुत ही आनंद मना रहा था. He was waiting for this moment. वो तो इस क्षण के लिए रुका था. And that's what Shimeis do, my dear friends. और मेरे मित्रों, यही तो शिमी करते हैं हमारे जीवन में. There are people who are waiting for you when you fall, when you commit mistakes, when you are down and out. They will be the one who will come out and they will verbalize what has been harbored in their hearts against you for ages. Yes. और ऐसा ही होता है हमारे जीवन में मेरे मित्रों, जब लोग जो आपके विरोध में है, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको श्राप देते हैं, जो इस क्षण के लिए रुके रहते हैं कि आनंद मनाएं, और वो ऐसे समय में अपने शब्दों को जो उनके जीवन में चल रहे हैं, जो उनके ज़हन में बैठे हुए हैं, उनको वो बोल देते हैं. 2 Samuel chapter 16 और यदि हम जाए दूसरा सामुएल उसके 16 अध्याय में, and verse 5 says, उसकी 5 आयत में इस when प्रकार लिखा है. King David came to Bahurim, there came out a man of the family of the house of Shaul, whose name was Shimei, the son of Gera, and as he came, he cursed continually. जब राजा दाऊद, दूसरा सामुएल 16:5 में लिखा है, जब राजा दाऊद बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला. वो गेरा का पुत्र शिमी था और वो कोसता हुआ चला गया. He was continually cursing the man that God had appointed and anointed. वो लगातार कोस रहा था राजा दाऊद को, जिसको परमेश्वर ने चुना और अभिषेक किया था. Not only that, ना केवल ये, verse 6 says, he threw stones at David and at all the servants of King David who were on his right and left. ना केवल वो कोसता रहा, कोसता हुआ चला आया, बल्कि 6 आयत में लिखा वो दाऊद पर और राजा दाऊद के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिने बाईं दोनों ओर थे. Verse 7 says, 7वीं आयत में, Shimei said as he cursed, शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, get out, you man of blood, you worthless man. The Lord has avenged on you all the blood of the house of Shaul, in whose place you have reigned, and the Lord has given the kingdom into the hand of your son Absalom. See, your evil is on you, for you are a man of blood. 7वीं 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है. यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया. So, remember this thing happened, this was thousands of years ago. और आप याद करें कि ये हुआ था हजार साल पहले. And in those days, उन दिनों में if somebody did this to a king who was appointed by God against
by God over the people of his choosing, और उस समय में यदि कोई परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति पर, अभिषिक्त व्यक्ति पर यदि कोई पथराव करे, so what did people like Shimei in those days deserve? तो उन दिनों में शिमी जैसे व्यक्तियों को के ऊपर क्या होना चाहिए था? Certainly death, and that too immediately. और जो परिणाम होता था वो था मृत्यु. He was doing this as an act of disloyalty against God's anointed king. और वो ऐसा करने के द्वारा वो दिखा रहे थे कि वो अपने राजा के प्रति जो परमेश्वर का अभिषिक्त है उसके प्रति क्या कर रहे हैं. Shimei failed to see what God was doing and where God was moving and in whom God was working at that moment. और शिमी इस बात को पहचानने से रह गए कि परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा, उस अभिषिक्त के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं उस क्षण में. Kings in those days and in those places उन जगहों में और उन समय में राजा लोग जो थे did not tolerate at all people like Shimei. वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जिस प्रकार से ये शिमी था. Shimei deserved death, and that too immediately. और शिमी के ऐसे कारण, ऐसा करने के द्वारा परिणाम स्वरूप उनको मृत्यु ही मिलनी थी. And that's why the security people around David, who was the king de facto in those days, और उन दिनों में जैसा कि राजा दाऊद जो थे वो राजा थे, they told King David, Abishai, the son of Zeruiah, to the king, who was probably one of the officers of the security of King David. Abishai, the son of Zeruiah, said to the king, "Why should this dead dog curse my lord the king? Let me go over and take off his head." तब सरुया के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सर काटने दे. Yes, that's what he deserved. और यही जो था जो उसको मिलना चाहिए था. And that's what, my dear friends, we deserve when we are acting like Shimei in our lives. और मेरे मित्रों, यही हमारे साथ भी होना चाहिए जब हम शिमी की तरह अपने जीवन में कार्य करते हैं. That's what people around us who may be acting like Shimei against us deserve. तो मेरे मित्रों, जो शिमी हमारे प्रति इस तरह से कार्य करना चाहते हैं, यही तो उन्हें मिलना चाहिए. But the question is, पर सवाल ये है, how did David react to this suggestion that his head should be chopped off right away? तो सवाल ये है कि राजा दाऊद ने क्या प्रत्युत्तर दिया जब उनको ये सुझाव मिला कि शिमी का सर कट जाना चाहिए. David reacted in mercy and forgiveness. दाऊद ने जो है उसने दया और क्षमा के साथ अपना जवाब दिया. In chapter 16, David took it as a tool in God's hand. और राजा दाऊद ने एक परमेश्वर के हाथ में एक यंत्र की तरह इस्तेमाल किया. Chapter 16, second book of Samuel, chapter 16 and verses 10 onwards, if we read. यदि आप दूसरा शमूएल 16 अध्याय उसकी 10 आयत से आगे पढ़ेंगे, Verse 11 says, 11 आयत में ही लिखा है, David said to Abishai, who was his security officer, फिर दाऊद ने अभिषय और अपने कर्मचारियों से कहा, and he addressed to all his servants, और उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों से इस प्रकार से वार्तालाप की, "Behold, देखो, my own son seeks my life. मेरा निज पुत्र मेरे प्राण का खोजी है. How much more may this Benjaminite leave him alone and let him curse, for the Lord has told him to. It may be that the Lord will look on the wrong done to me, and that the Lord will repay me with good for his cursing today." फिर दाऊद ने अभिषय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो ये बिन्यामीनी अब मेरे साथ क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे बदला दे. This is why David is called a man after God's own heart.
इसीलिए तो दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बोला because गया। he wouldn't succumb to the suggestion that his opponent should be immediately punished by chopping off his head through his security men. क्योंकि वो इस बात के इस सुझाव को एक तरह से दरकिनार करता है जिसके लिए बोला गया था कि इसके सर को काट दो। Rather, he sees some other purpose in Shimei's act of cursing David. बल्कि वो दूसरी तरफ से उसको समझता है जब शिमी उसको कोसते हैं। And David says, let him curse. दाऊद कहते हैं उसको कोसने दो, Because maybe the Lord has permitted him and said him to curse David. और जबकि दाऊद कहते हैं कि उसको रहने दो, शाप देने दो, क्योंकि हो सकता है यहोवा परमेश्वर ने उसको बोला हो कि वो ऐसा कहे। Wow. David saw God working even in his opponent's life, those who were cursing him at this time when he was down and out in his ministry, in his calling, in his purposes. कितनी सुंदर बात है कि उसके दुश्मन के सामने जिसने उसको शाप दिया, उसके बीच उसके कोसने के मध्य में भी उसने परमेश्वर के हाथ को देखा। And what he sees as God's purpose is और वो क्या देखता है कि परमेश्वर की योजना है। that maybe perhaps Shimei is God's tool. हो सकता है कि वो सोच रहा है कि ये शिमी जो है परमेश्वर के हाथ में एक ऐसा यंत्र हो That God is using जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं for David दाऊद के लिए, to make him a better person, कि वो उसको एक बेहतर इंसान to बना make him a better leader, दे, कि उसको एक अच्छा अगुवा बना दे, to make him a better anointed king over his own people. कि वो उसको अपने ही लोगों के सामने के ऊपर एक अच्छा बेहतर राजा बना To दे, make him a better servant of his choosing because God's hand was upon Amen. David's life. कि उसको अपना एक अच्छा सेवक बना दे, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ My है। friends, we will have Shimeis, people like Shimeis in our life that God might send. मेरे मित्रों, हमारे जीवन में शिमी जैसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको परमेश्वर भेजते हैं। Maybe you have a Shimei that you know in your life. हो सकता है आपके जीवन में कोई शिमी हो जिसको आप जानते हैं, Maybe you don't know them, हो सकता है आप नहीं भी जानते हो, but they tell you or not, they secretly hate you. चाहे वो आपसे बोले या ना बोले, लेकिन वो सीक्रेटली आपको पसंद नहीं करते हैं। They don't recognize God's choosing, God's calling, God's anointing in your life. क्योंकि वो आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा आपको चुनना, आपको अभिषेक करना, इस बात को पहचानते So नहीं। if you have a Shimei, a person like this Shimei in your life, यदि आपके जीवन में इस प्रकार का शिमी आपके जीवन में है, you would understand that they are sent in your life perhaps to keep you humble. तो आपको इस बात को पहचानना पड़ेगा कि वो आपके जीवन में भेजे गए कि आपको हम्बल रखे। People who criticize you, लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, people who don't like you, लोग जो आपको नहीं पसंद करते, things people say against you, लोग जो आपके विरोध में बातें करते हैं, perhaps God is using them to keep you humble in your calling, in your ministry, in your purposes. हो सकता है परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा हो आपके जीवन में कि परमेश्वर आपको थोड़ा सा दीन बना दे परमेश्वर के कार्य के लिए। So the question for you and me today is, इसलिए सवाल मेरे और आपके लिए आज ये है, how do you deal with the Shimeis in your life? क्या आप अपने जीवन में शिमी जो है, शिमी जैसे व्यक्ति हैं, उनके साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं? How do you take their criticism in your life? और उनके अपने जीवन में आप उनके क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? Do you see them as making you humble and keeping you humble when God is using you for His purposes? और जब परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप इस बात को समझते हो कि परमेश्वर आपकी सेवा में आपको दीन बना रहे हैं? What Shimei did to David जो शिमी ने दाऊद के लिए किया, must be very humbling to David. वो दाऊद के लिए बहुत ही उसको दीन बनाने के लिए He था। knows that he is appointed, he is anointed, उसको मालूम है कि परमेश्वर ने चुना है, अभिषेक किया उनको, and now he knows that his own son has risen against him. He is running away from him for his life. और अब वो अपने जीवन में बचने के लिए अपने ही बेटे से भाग रहे हैं। We become proud by our nature as human beings, and David may have had the opportunities that he
probably was proud himself. और मनुष्य होने के नाते हम घमंड से भर जाते हैं. हो सकता है कि दाऊद भी घमंड से भर गया जब वो राजा था. So God allows people like Shimei in our life इसलिए परमेश्वर ऐसा होने देते हैं कि शिमी जैसे व्यक्ति हमारे जीवन में आए, to keep us humble and be closer to God and to seek God even more than we have done before. हमको दीन बनाने के लिए, ताकि हम और भी ज्यादा परमेश्वर के सामने दीन होके उसके सामने झुक जाएं. People like Shimei in our lives must be seen, और जो हमारे जीवन में जो शिमी जैसे व्यक्ति हैं उनको ऐसे देखना चाहिए that they will keep you humble and always seeking the will of God and be after God and be doing what God has called you to be. शिमी जो हमारे जीवन में है तो हमें उनको इस प्रकार से देखना है कि हमको परमेश्वर अपने निकट और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और भी ज्यादा दीन बनाना चाहते So हैं. if you don't have a Shimei in your life, perhaps you need one. और यदि आपके जीवन में कोई शिमी नहीं है तो शायद आपको एक शिमी की So that आवश्यकता है, you could be closer to God when you hear them criticize you. ताकि आप परमेश्वर के और नजदीक हो जाएं जब वो आपको बुरा भला कहते हैं. When God has called us to follow Jesus Christ, जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम यीशु के पीछे हो ले, He also sends people like Shimei in our life तो वो हमारे जीवन में शिमी जैसे लोगों को भेजते हैं to die to ourselves, कि हम अपने आप में मारे जाएं, to check our pride, कि हम अपने घमंड को चेक करें so that we can live for Christ. ताकि हम मसीह के लिए जी सके. Everyone needs a Shimei to trust in God and to continue to walk with Him. और हर एक को अपने जीवन में शिमी जैसा व्यक्ति चाहिए ताकि उसका परमेश्वर पर भरोसा बना रहे और वो परमेश्वर के साथ चलते रहे. That's why in James chapter 4 and verse 10, James wrote in the New Testament, इसलिए नए नियम में जेम्स की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, humble yourself before the Lord and He will exalt you. प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. Don't give much thought to the people, the Shimei in your life. और ज्यादा समय सोचने में मत लगाएं शिमी के लिए जो आपके जीवन में हो. Your Shimei is God's tool to keep you humble, आपके जीवन में यदि कोई शिमी है तो वो एक यंत्र है परमेश्वर के हाथों के द्वारा कि आपको दीन बनाए रखे, to keep doing what God has called you to do. कि आप वही करते रहे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है. Don't try to lift yourself up and be exalted in the sight of men and women. और लोगों के बीच में अपने आप को उठाने के लिए और ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश ना करें. Don't puff yourself up. और अपने आप को ज्यादा फूलने ना दें. Don't let people come and treat you as though you are God Himself. और लोगों को इस प्रकार से भी अपने लिए करने दें कि वो आपको ऊंचा उठाएं. Keep humble दीन बने रहे and let God do it for you. Let God exalt you. Let God lift you up when you keep yourself humble. और ऐसा होने दे कि जब आप दीन बने रहे तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाए, आपको शिरोमणि बनाए. Now Shimei did not just curse David, God's anointed. और शिमी ने ना केवल दाऊद को जो परमेश्वर का अभिषेक था ना केवल उसको कोसा. The story takes a turn और जो कहानी है उसमें एक घुमाव आता है in the second book of Samuel दूसरे सैमुएल की पुस्तक में and chapter 19. उसके 19 अध्याय में. Now David's son Absalom is no more. और अब दाऊद का बेटा अबशालोम नहीं रहा, He died in a battle. वो युद्ध में मारा गया. David is returning now to Jerusalem to claim the kingship that God had appointed him for. और दाऊद राजा अब यरूशलेम की तरफ बढ़ते हैं कि अपने राजा बनने को स्वीकार करें, वापस सिंहासन पर आ जाएं. So everybody is coming to celebrate with him, welcome him, and the people are lined up with bouquets of flower and gift and whatnot, because now he is back to where he belonged as the rightful king of Israel. और अब क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा बनकर वापस आ रहा है अपनी राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो लोग चारों तरफ है जो उसके स्वागत में है, उसका बहुत ज्यादा उसका साथ जश्न मना रहे हैं. So now Shimei realizes that King David will be the king over Israel. और अब शिमी जो है इस बात को महसूस करते हैं, पहचानते हैं कि अब राजा दाऊद जो है वो इस्राएल का राजा होगा. So Shimei comes begging for mercy
at the feet of King David. और इसलिए अब शिमी जो है वो राजा दाऊद के चरणों पर आते हैं और उससे दया की भीख मांगते हैं। From verses 16 to 20 in the 19th chapter of 2 Samuel, इसलिए दूसरा सामुएल में 19 अध्याय की 16वीं आयत में he says, "Do not let my Lord impute iniquity to me, or remember what wrong your servant did on the day that my Lord the king left Jerusalem, that the king should take it to heart." और 19 आयत में लिखा है, राजा से शिमी कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना कर, और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे। Now is the same security person Abishai, और अब जो वो कर्मचारी है अभिषय, who earlier told King David, "Let me chop off his head right there." और जिसने पहले राजा दाऊद से कहा था कि मुझे इसके सर को काट देने दे, In verse 21 he says again, वो 21 आयत में फिर से कहता है, Abishai, son of Zeruiah, answered, "Shall not Shimei be put to death for this, because he cursed the Lord's anointed?" और अभिषय ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? Now we know that Shimei was not really repentant. और हम जानते हैं कि शिमी जो है वो ज्यादा पश्चाताप में नहीं है, But he was fearing for his life. पर वो अपने जीवन के लिए डर रहा था। We need to see people whether they are really repentant or not. हमें बहुत ध्यान करना चाहिए देखने के लिए कि ये जो व्यक्ति दया मांग रहा है वो वाकई में क्षमाशील है। And we may sometimes not be able to really see people's repentance, whether it is genuine or not. और हम इस बात को पहचान नहीं सकते अक्सर कि जो व्यक्ति माफी मांग रहा है वो वाकई में माफी मांग रहा है। But there is a lesson for each one of us to learn from Shimei as well as from King David. परंतु हमारे लिए एक शिक्षा लेने वाली बात है शिमी के जीवन से और दाऊद राजा के जीवन से। In the second book of Samuel, chapter 19 and verses 22 to 23, और दूसरे सामुएल 19 अध्याय की 22 और 23 आयत में लिखा है, it says Shimei literally fell down at the feet of King David. और उसमें लिखा है कि शिमी जो है वो राजा दाऊद के पैरों पे गिर गया। Verse 20 says he confessed that he had sinned. 20 आयत में लिखा है कि उसने इस बात को माना कि उसने पाप किया है। David's servants wanted him dead right there. और दाऊद के सेवक उसको मरा हुआ देखना चाहते थे। But how did King David react? लेकिन राजा दाऊद ने किस प्रकार से व्यवहार किया? David reacts in kindness and forgiveness. दाऊद राजा जो है बड़ी दया के साथ और क्षमा के साथ उसके साथ बर्ताव करते This is हैं। a beautiful painting depicting what happened that day. This is Shimei with stones in his hand. और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शिमी जो है वो पत्थर लिए अपने हाथ में, And there are some stones that you see, they are laying here. और कुछ पत्थर आप नीचे पड़े हुए देख सकते हैं। But notice David's hand. लेकिन आप दाऊद के हाथ को देख सकते हैं। This is probably Abishai, और हो सकता है ये जो जिसका हाथ दाऊद पकड़े हुए हैं वो शायद वो अभिषय है, who wanted Shimei dead immediately. जो चाहता था कि शिमी को मार दिया जाए। David places his hand on his security man Abishai and tells him no. और दाऊद राजा जो हैं वो अभिषेक को हाथ को थाम लेते हैं और कहते नहीं। David's officers, David's faithful men, they want immediate revenge. और जो दाऊद राजा के जो सहकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तुरंत एक उससे बदला लेना चाहते हैं। And they were right. वो सही भी हैं। And that's what the kings did in those days. और यही तो है जो राजा करते थे उन दिनों में। But that's not how David became a man after God's own heart. पर इसलिए नहीं है कि दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बोला जाता है। He was an anointed man of God. वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था। And anyone who speaks against the Lord's anointed in those days was murdered, killed immediately. और हर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति था, उनको तुरंत मार दिया जाता So था। David would not have done anything wrong in eliminating this threat forever.
और यदि ऐसा दाऊद चाहता तो वो गलत नहीं होता इस कार्य को करने में. But David had also the Spirit of God upon him. That was kindness, that was gentleness, that was forgiveness, that he was full of from the Lord. Amen. लेकिन दाऊद के जीवन में उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी जिसके द्वारा उसके अंदर दया क्षमा भरी हुई थी. He says, no, today as the king returns to his throne, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, आज जब परमेश्वर का ये दास राजा जो है अपने राजगद्दी पर आया है, nobody is going to die. कोई नहीं मरेगा. No blood will be shed when David becomes the king again. किसी के जीवन से लहू नहीं बहेगा क्योंकि राजा वापस आया है. So why did David show mercy? राजा दाऊद ने दया क्यों दिखाई? Is revealed to us in verse 22, a very interesting verse. और बहुत ही दिलचस्प बात है जो 22 आयत में पाई जाती है. 19 and 22 says, दूसरा सैमुएल 19 अध्याय की 22 आयत में लिखा but है. David said, दाऊद ने कहा, what have I to do with you, you son of Zeruiah? That is his security officer he is talking to, that you should this day be an adversary to me. Shall anyone be, that's the thing he says. Shall anyone be put to death in Israel this day of rejoicing, this day when God has given victory to his son and anointed David? तो 22 आयत में लिखा है, वो अपने कर्मचारियों से बात करते हैं, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ? And then the last verse that he speaks is very, very significant. Underline that in your Bibles. और जो आखिरी बात वो 23 आयत में कहते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. For do I not know that I am this day king over Israel? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा. And the king said to Shimei, you shall not die. And the king gave him his oath. फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई. See, when you are the king, जब आप राजा होते हैं, in order to show the world that you are the king, दुनिया को दिखाने के लिए आप राजा हैं, there is no need to kill anybody. कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी को मारें. It's when you aren't sure that you are the king, when you are appointed and anointed by God, and maybe because of some other means you have reached where you are today. और यदि आप इस बात से सुनिश्चित नहीं है कि आज आप जहां पर ओहदे पर हैं वहां क्यों हैं, when you are sure that God is not with you, और जब आप इस बात से पूरे तरह से श्योर हैं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, maybe it is some millionaire, some billionaire, some evil people who have done something that have brought you to where you are today. तो हो सकता है जिनके पास बहुत धन संपत्ति हो, उनके कारण आप वहां हैं जहां पर आप आज हैं. Then you want to eliminate anybody who will criticize you. ऐसे समय में आप हर एक जन को ऐसा हटाना चाहेंगे जो आपके विरुद्ध बोलते हैं. But David, who was a man after God's own heart, परंतु दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति हैं, he knew in the depth of his heart उनको अपने मन की गहराई में, हृदय में मालूम था that he was chosen by God, he was appointed by God, he was anointed by God. कि उसको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है. It is not any man who has done this in his life. आमीन. और कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसने ऐसा उसके जीवन में किया हो. But he was king from within, from inside. Amen. The kingship and the confidence of the calling of God in his life was overflowing from the inside in the life of King David. और राजा दाऊद के अपने जीवन में पूरी निश्चितता से कि वो राजा है और परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया है, वो उसके जीवन से उमड़ रहा था. It is part of who he was. और ये उसके जीवन का वो हिस्सा था कि वो है कौन. It was his identity. ये उसकी पहचान थी. This is what gives you confidence of who you are. यही तो हमें आश्वासन देता कि हम हैं कौन. That you have been called by God. कि हमको परमेश्वर ने बुलाया है. For a time as this, for such a place as this, and for a position as King David. और ऐसा स्थान, ऐसे समय और ऐसे ओहदे के लिए जैसा दाऊद को मिला. But if you have purchased your crown, लेकिन यदि आपने अपने मुकुट को खरीदा है, if you
have purchased your seat, यदि आपने अपनी उस गद्दी को खरीदा है, if you have reached at the top level by cheating, और यदि आप बेईमानी से आप उस ओहदे पर जो सबसे ऊंचा है उस पर पहुंचे if you हैं, have been propped up by people around you, और यदि लोगों के उकसाने से आप ऊंचे पहुंचे हैं, then you will never have that confidence that David had. तो आपके पास वो आश्वासन नहीं होगा जो दाऊद का था। You will never have a kingly identity, a royal identity flowing from out within you. तो आपके जीवन में अंदर से वो राजकीय पद, वो राजा होना आपके अंदर से नहीं उमड़ेगा। And therefore, इसलिए it will also be shown in your actions, and they will never be of mercy and forgiveness Yes. and kindness ever. और इस कारण से आपके जीवन में ऐसे काम नहीं दिखाई देंगे जो दया, क्षमा और दूसरे के प्रति दया दिखाना हो। It's not just in the life of King David. ये केवल राजा दाऊद के जीवन You में नहीं can था। clearly observe that in the life around you today. आप अपने जीवन के चारों तरफ इस प्रकार की बातों को देख सकते When हैं। some people somehow, by hook or crook, by any means, become wealthy, जब किसी भी तरीके से गलती से लोग बड़े धन संपन्न हो जाते हैं, so they are not sure how to deal with their wealth. तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो किस प्रकार से अपने धन को बांटे। And some who have been wealthy, they are confident they don't show off their wealth. और जो ज्यादा धनी होते हैं वो अपने आप को जो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं वो अपने धन को दिखाते नहीं हैं। But those who have become wealthy recently through various illegal means, लेकिन अभी चलते यदि कोई धनी हो गया है गलत तरीके से और गलत कार्य के द्वारा, when they reach the top, जब वो ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, they have to demean people in order to show their wealth off. तो वो लोगों को नीचे दिखाना चाहते हैं अपने धन को दिखाने के लिए। They have to purchase praisers, those who will always praise them. तो वो ऐसे लोगों को खरीद लेते हैं जो उनकी हमेशा तारीफ करते रहे। They have to always show off their wealth. वो हमेशा दिखाना चाहते हैं कितने धनी है They वो। have to convince others how powerful they are by killing people, by killing shimmies in their lives. और वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कितने सामर्थ्य है वो कि अपने जीवन में जो शिमी की तरह उनके जीवन में उनको मार दें। They have to make others suffer and beg. वो चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं शिमी की तरह उनको वो परेशान करें, To put them in their place, वो उनको उनके स्थान पर लगा दें, so that they could show off how powerful and how royal and how kingly and how wealthy they are. ताकि वो ऐसा करने के द्वारा ये दिखा सके कि कितने धनी हैं वो, कितने बड़े हैं और कितने उनके हाथ में ताकत है। David tells us today, दाऊद हमें आज बताते हैं, you don't have to kill someone else to make a point that you are the king. कि तुमको जरूरी नहीं है कि तुम किसी को मारो ये दिखाने के लिए कि तुम राजा हो। My dear friends, मेरे मित्रों, for us to evaluate today ourselves, who are we? हमें अपने आप को पहचानने के लिए कि आज हम हैं कौन। First and foremost, पहली सबसे मुख्य बात, we are sinners, हम सब पापी हैं। whoever you may be. आप चाहे कोई क्यों ना हो, How powerful you are doesn't matter, how wealthy you are doesn't matter, you are a sinner in the eyes of God. आप चाहे कितने भी धनी हो, आप चाहे कितने शक्तिशाली हो, परमेश्वर की आंख में नजरों में आप पापी हैं। And secondly, we are saved by the grace of Yes, God. आमेन। और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बचाए गए। If you know your king, यदि आपको मालूम है कि आपका राजा कौन है, the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, nothing else matters. तो कुछ भी चीज आपके लिए मैटर नहीं करेगी। We are sinners, but we are saved by the grace of the Amen. Lord Jesus Hallelujah. Christ. हम सब पापी हैं लेकिन हम बचाए गए परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। And now we are called और अब हम बुलाए गए हैं to show the mercy that we have received, the forgiveness, the kindness of the Lord, the grace of the Lord that we have received in our lives, to show it to others. और हम बुलाए गए हैं ताकि हमारे जीवन में हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को दया, करुणा और उनके प्रति हम क्षमा दिखाएं। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।